ਹੈਲੋ एवरीवन ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1000 ਬੈਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 12ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 11 ਪਾर्ट दोस्तों करवा चुके हैं जिन्हां दी पूरी जानकारी ਤੁਹਾਨੂੰ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन च है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा उत्थे क्लिक करके लै सकते हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, PPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, NTPC ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅਗਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ PDFs ਔਰ ਈ-ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਬ ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ PSPCL ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 100% ਸਿਲੇਬਸ ਐਕੂਰੇਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। फिलहाल अजे तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भ्रमित ने, परेशान ने क्योंकि फर्जी वैबसाइटा ने नोटिफिकेशन पा रखे ने कि 31 जनवरी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स डेली फोन करते हैं सर जी फॉर्म कित्थे भरना है, किवें भरना, इहो जिहा कुछ नहीं है। जिद्दन भी भर्ती के संबंध च कोई खबर आएगी तुहानूं सब तो पहला इन्फॉर्मेशन की जाएगी क्योंकि एडी कोई मैं कहना साऊ सरकार नहीं है कि ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਦੇਅਰ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ PCS ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, जो मेरा स्वास्थ्य है पहले नालों किते ठीक है तो मैं होर भी धमाकेदार साड़ी फैकल्टीज़ है। जिन्ने भी टीचर इधर उधर बिजी सीगे बहरहाल सारे बिल्कुल वापस तो बैक टू द मिशन ऑन आ रहे हैं। तो थोड़े तक बहुत ही ताकड़ सैशन लैके असी बहुत जल्दी सारे पहुँचांगे। ठीक है, तो तुसी जाके फटाफट चैनल जरूर सबसक्राइब करो यार। अज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन थोनों दे रखा है स्क्रीन पर दिता हुआ है कि एडाफिक इज़ ए नेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी एडाफिक है ना, एडाफिक बारे पूछा है कि ये नेचर ऑफ विच किहदा नेचर है। ठीक है, यानी सोइल का नेचर है या पानी का नेचर है या इन्वायरमेंट का है या वैदर का है या किसी का भी नहीं। तो तुहानूं दसना चाहांगा कि एडाफिक है ना वो याद रखना है कि यह सोइल का नेचर है। क्यों कह सकते, देखो बहरहाल एडाफिक हुंदा की है, एडाफिक आप कह सकते कि नेचर प्रकृति देखो प्रकृति के उपर आप गल करते हैं सब तो ज़्यादा तो वी ऑल लिविंग परसन एंड नॉन लिविंग परसन कितने स्टैबल ने, मिट्टी ते स्टैबल ने। ठीक है, और इस मिट्टी के विच जिन्ने भी आप कह सकते कि चाहे वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ बल्कि कैल्शियम मिलता है, चाहे ये आप बहुत सारी मिट्टी कैल्शियम भी कह सकते हैं, कैमिकल भी कह सकते हैं और मिट्टी के उपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारिया है। ठीक है, क्योंकि सीजन के मुताबिक इस मिट्टी तो ही बहुत सारिया चीज़ां अपने आप यानी जदों ही उन्हों सीजन आता है और जदों भी उन्होंने नमी मिलती है तो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इदा ही एडाफिक इज ए नेचर रिलेटेड टू द सॉइल है क्योंकि एडाफिक क्वालिटीज़ में द करैक्टराइज ऑफ सॉइल इटसैल्फ, जिमें कि इंक्लूडिंग आप कह सकते हैं ड्रेनेज है, टैक्सचर है या कैमिकल है, प्रॉपर्टीज सच एज सॉइल जिमें PH आप कह सकते हैं मान है। ठीक है, बहरहाल तुसी कमेंट बॉक्स के मैनूं दसो कि ये थोनों जिन्ने भी मैं क्वेश्चनस करवा रहे कि समझ आ पा रहे हैं या नहीं समझ आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां है जिन्होंने मैं मैक्सीमम थोनों एक्सप्लेन है हिंदी च ही करके दसदा माफ जो इंग्लिश च ही रखदा मैं ताकि स्टूडेंट साडे बेहतर समझ सकन। क्योंकि रीजन इहदा ये हैगा कि कई सारिया चीज़ां इदां दियां हुंदियां कि जिन्होंने असी बल्कि जिन्होंने असी बेहतर तरीके नाल इंग्लिश ही समझ सकते हैं। बाय द वे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत सारिया चीज़ां इंपॉर्टेंट होंदियां क्योंकि इन्हां दे फैक्ट्स ने जिहड़े इन्हां दे महत्व ने उन्हां नूं आपां समझांगे। ठीक है, एडाफिक नूं खास तौर पर आपां कहने शोषक। ठीक है, हुण शोषक की हुंदा जिवें आपां खास तौर पर मृदीय कारक कह सकते हैं
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਦੀਆ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਕਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿद्धੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੀਐਚ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਚ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿਊਮਸ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ अन्य ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਾ एकदम चिट्ठा खोलता है। आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਤ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ अर्ਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਪ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਐਨ ਐਕਸਟਰਾ अर्ਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? चार ऑप्शन दिते ने, पंजवां नन ऑफ दीज है। दोस्तों याद रखना ये ग्रेम का है। दोस्तों कदा होएगा? ग्रेम का होएगा, बिकॉज प्रभात एंड एक्सट्रा अर्ली वैरायटी है ना, वो रेड ग्रेम है। ठीक है, प्रभात विच रोज़ का मैं कह सकता है कि जिमें कि सैगरेंट है, वैरायटी यदि केड़ी हैगी T21 है। ठीक है, या आप मेच्योर 110 कह सकते हैं। 110 तो लैके 115 दिनों की यह ड्यूरेशन है, मतलब नेचर इन्ने दिनों के विच फसल है ये पक जाती है। ठीक है, प्लांट टाइप ऑफ डिटरमाइन जिमें कि बंची है, गुच्छे होंगे ने, या फ्लैट टॉप पे भी हो सकते हैं। तो प्रभात एक मैं कह सकता कि वैरायटी ऑफ रेड ग्रेम दी है, जिहदा तकरीबन जो टाइम पीरियड है 110 तो लैके 115 दिनों का है, और जिहदी जो किस्म हैगी है T21 सब तो सुपर मनी गई है। ये तुसी याद रख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन है इन इंडिया, भारत दे विच तुहानूं पुछया जा रहा है इन इंडिया वाटरमैलन क्रॉप ग्रोन इन विच सीजन। वाटरमैलन सब नूं पता है ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਨਾਬ ਸ਼ਨਾਬ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਅਨਾਬ ਸ਼ਨਾਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋ ਫਸਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਖਰੀਫ ਨਾ ਰਬੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਦ ਫਸਲ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ मैं कह सकता इंडियन सब कॉन्टीनेंट। ठीक है, द क्रॉप ग्रोन है जी ये इरीगेटेड लैंड विच नोट हैव द वेट ऑफ मानसून का वेट नहीं करती। ये शॉर्ट ड्यूरेशन है बिटवीन रबी और खरीफ के विचाले होंगी है। मेनली मैं कह सकता दोस्तों कि तुसी तुहाडे दिमाग 'च ये भी रख सकते हो कि मार्च और जून के विचाले सब तो ज़्यादा लो पैंदी है तो गर्मी होंगी है। उस दरमियान की फसल नूं आपां जायद फसल कहने हैं। खास तौर पर बिटर गार्ड है या वाटरमेलन इस दरमियान उपयोग इन्हां दा उपजाऊ हुंदा है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है। सैशन प्लीज़ शेयर कर दो यार। क्यों करते हो? क्यों तुसी मैनू बार बार इस गल कहने ते मजबूर करते हो? तुहानू चंगा लगता है कि मैं चीज़ां बार बार तुहानू एक्सप्लेन करा? प्लीज़ शेयर कर दो यार। तुहाडे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनू उदों अच्छा नहीं लगता कि तुसी शेयर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुसी डिसलाइक कर दो, क्विट कर दो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। लेकिन चंगा उदों नहीं लगता जदों कि सानू नवा विद्वान सज्जन कॉल करके मैसेज करके पूछता सर कि सर एग्रीकल्चर की क्लास कितने बजे लगती है। जे तुसी प्लीज़ हुणी शेयर कर दोगे ना ताकि पता लग जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब की है। डैश 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 इज ए टिपिकली करैक्टराइज्ड ऑफ द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बारे पूछा जा रहा है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग दे थोनू इत्थे बेहतर एग्जाम्पल मैं दे चुके हैं, और इन्हां 5 एग्जाम्पलों के विचों थानू सब तो बेस्ट किहड़ा लगदा उहदा आंसर मैनू फटाफट दो यार। ठीक है, उहदा आंसर मैनू फटाफट दो, जल्दी जल्दी जिन्ना फास्ट हो सकता है क्विकली जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है ना, मैं कह सकता कि एक्सटेंसिव एंड यह एक मशीनाइज्ड फॉर्म एग्रीकल्चर है। ठीक है, खास तौर पर यदा इन्वेंशन किया गया सीगा कि फार्म मशीनरी विच अनेबल फार्मर टू कल्टीवेट ग्रेन ए लार्ज स्केल, यानी खेतीबाड़ी नूं लार्ज स्केल ते जदों किसानां द्वारा नहीं, जिमें कि तुसीं देखिया होएगा कि पहला लोग जो हाड़ी सी कणक दी फसल सी दातियां नाल वढ़दे हुंदे सीगे। ये सिस्टम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? पिछे 2 मेजर रीजन ने। एक तो वैदर, सब तो ज़्यादा पता नहीं किहड़े टाइम की हो जाना है, और दूजी गल ये हुंदी कि किसानां नूं ये पता हुंदा है कि फसल नूं सीधा मशीन फिराओ और सीधी ट्रॉली च पाओ और सीधा मंडी आड़ती दे सुੱਟੋ।
ਖਤਮ ਝੰਜਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਟਾਈਪ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਪੰਡਾਂ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੋਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਖਿਲਾਰੋ, ਸੁਕਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੱਢੋ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਲਾਈਵ ਸਟॉक ਸਪੇਸ਼ਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਬਰੀਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਇੱਕ ਵਾਈਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਲਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ। ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੋਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਰਨ ਇਜ਼ ਏ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਮॉल ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 146 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਡੈਸ਼ 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 ਫਰੋਮ ਤੰਬਾਕੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਮੋਇਸਚਰ ਫਰੋਮ ਤੰਬਾਕੂ ਲੀਵਸ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਅਰੋਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸਚਰ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਕਰਿੰਗ ਆਫ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾ। ਮੋਇਸਚਰ ਰਿਮੂਵਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰੋਮਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਤੋਂ ਔਰ ਟੈਕਸਚਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਿੰਗ ਆਫ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪੋਟੈਟੋਸ ਵਿਲ ਆਫਨ ਗੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਡਿਊ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਲਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बारे भी तुहानूं पता होएगा, ड्यूरिंग सनलाइट है जो अपने प्लांट्स ने जिहड़े अपना फूड बनाउंदे ने ड्यूरिंग डे टाइम जदों कि उन्हां नूं बल्कि सन दियां डायरैक्ट आपां कह सकते हैं कि अल्ट्रा वायलैट्स जदों पैंदियां और उस टाइम पानी दिता जांदा तो उस टाइम यानी फूड बनाउंदे, दैट मैं कह सकदा कि एक डिफरेंट कंसैप्ट है। बल्कि इत्थे सीगा कि पोटैटो विल ऑफन गो ग्रीन कलर ड्यू टू द किस कारण है, बल्कि यह बल्कि फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल का कारण है। पोटैटो की खास तौर पर आप कई बार गल कर सकते, दे नॉट स्टोर्ड प्रोपरली एंड दे आर एक्सपोज टू द लाइट है, ठीक है, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल विच इज फाउंड टू द ग्रीन प्लांट इन्हों क्या जाता है। तो ये तुसी बिल्कुल सिंपल जहा कंसैप्ट याद रखो अपने माइंड से। अगला क्वेश्चन है नैक्सट रखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP इज फिक्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर चौथा होएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये तुहानूं स्टेट गवर्नमेंट पूछा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा MSP, ठीक है। तो यह बल्कि एक मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर द एग्रीकल्चर जिन्हें प्रोड्यूसर्स होंगे ने अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइस है उन्होंने इसका बेनीफिट दे दिता जाए, और जो मिनीमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनीमम मैक्सिमम दोनों इन्होंने द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन ते की है डैश 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 formulation are the applied as a suspension after a dispersion in water। सिंपल जा क्वेश्चन है और ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कमेंट बॉक्स से देना है, की आंसर हो सकता है क्विकली यार, कम ऑन गाइज। देखो क्वेश्चन की भाषा हर किसी बच्चे को समझ आ जानी चाहिए, कोई ज़्यादा औखा नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला दी कंडीशन ते तुहानूं पूछा गया है, ठीक है।
और बेसिकली इस ते पूछा गया सस्पेंशनस आफ्टर द डिप्रेशन इन वाटर, तो आंसर की होएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल जो क्वेश्चन है, आई होप थोड़ा समझ आएगा। जल्दी जल्दी ये आंसर कमेंट बॉक्स से देना है मैनू, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन तुहाडे तो पूछा जा रहा है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोरोसिस। सोरोसिस का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। एप्पल है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, बनाना है, नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों इन्हों का जो सही आंसर होएगा वो पाइनएप्पल बिल्कुल राइट आंसर है। देखो सोरोसिस है ना, ये कह सकता है कि बोटानिकल टर्म ऑफ एनी प्लांट दैट ए प्रोड्यूस द क्लस्टर ऑफ फ्लावर आउट ऑफ विच ग्रोज ए सिंगल कंपोनेंट फ्रूट है। तो इस करके आप कह सकते हैं कि पाइनएप्पल बिल्कुल राइट टर्म इसका सही होएगा, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ते डिस्कस करते हैं। सो वी हैव ए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इफ यू आर गेटिंग समथिंग स्पेशल फ्रॉम हियर सो प्लीज कीप इट शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ग्रैब करो जिन्नियां भी चीज़ां तुहाडे नाल शेयर कीतियां जा रही हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड खास तौर पर सब तो अच्छी चीज़ ये होएगी कि जदों तुसीं मैक्सीमम चीज़ों को इंटरस्ट बना के लर्न करोगे, याद करोगे। अगर तुहानूं कंसैप्ट एक बारी चीज़ समझ नहीं आती तो बिल्कुल छोटे छोटे सैशनस ने, इन्होंने सैकेंड टाइम भी तुसीं देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया। कमर्शियल क्रॉप बारे गल तुहानूं पूछी जा रही है। आप कमर्शियल क्रॉप बारे पहला भी डिस्कस कर चुके हैं, बट बाई द वे इत्थों एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू तुहाडे तो पूछा जा रहा वा। तो कमर्शियल क्रॉप च देखो मस्टर्ड भी आ जाता है, तंबाकू भी आ जाता है, जूट भी आ जाता है। इस करके आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होएगा। कमर्शियल क्रॉप इज एग्रीकल्चर क्रॉप विच ग्रोन टू द सेल रिटर्न ऑफ प्रॉफिट। मतलब कमर्शियल क्रॉप की गल पूछी जाए, नॉट ए फार्मिंग की गल पूछी जाए। तो कमर्शियल क्रॉप के विच आपां खास तौर पर याद रखना है कि जिहड़ी फसल बीजी जाती है सिर्फ परपज का आपां सेल करना और उत्थों प्रॉफिट कमाना। जिवें कि आपां अगर कणक बीजते हैं तो कणक नूं आपां घरे भी रखते हैं, बट अगर आपां नरमे की गल करिए तो नरमा तो नहीं घरे रखा जाता ना, वो तो किस्से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। यानी कणक तो आपां कणक नूं आपां बेच के प्रॉफिट भी कमाने, बट आपां खाण वास्ते भी यूज करते हैं, एक अलग किस्सा आ जाता है। बट अगर कमर्शियल की गल करिए तो आपां सिर्फ परपज अपना कि बीजी फसल बेची और अपने को प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन ते आपां डिस्कस करते हैं। विच इंडियन स्टेट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पल्सेस, ठीक है। पल्सेस दी विच लार्जेस्ट क्वांटिटी बारे डिस्कस हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा ना, मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर आएगा। जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट पल्सेज प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। लगभग आप गल करिए तो 23% इत्थे की है कि टोटल पल्सेज प्रोडक्शन होंदी है इन कंट्री। मध्य प्रदेश तो अलावा उत्तर प्रदेश होंदा जिथे 18% है, महाराष्ट्र जिथे 14% और राजस्थान जिथे कि 11% है, और आंध्र प्रदेश जिथे कि 9% है। तुसीं याद रखना, ठीक है। ये तुहानूं सीरीज वाइज भी पूछा जाए तो तुसीं एग्जाम्पल दे सकते हो। जिन्ने भी स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज है तुहानूं दसना चाहांगा, उन्हां स्टूडेंट्स नूं बिल्कुल हूबहू बिल्कुल स्टडी मटीरियल मिल जाएगा बाय द ई बुक्स। और जिन्ने भी अदर स्टूडेंट्स है थोनों असीं रेगुलरली इन्हें दे टाइटल शेयर कर रहे हैं, तो तुसीं यू कैन गेट फ्रॉम द टेलीग्राम, ठीक है। चलिए व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर तुसीं दसना राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया की होएगा। देखो असेंडिंग है वधदा क्रम, डिसेंडिंग है घटदा क्रम, ठीक है। और कादे बारे पूछा जा रहा है तुहाडे तो राइस का, ठीक है। तो तुहानूं मैं दसना चाहांगा डिसेंडिंग दे विच इत्थों गल तुहानूं पूछी जा रही है। तो अगर आप गल करिए तो सब तो ज़्यादा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ते हैं तो मैं भी थोड़ा जिहा इहदे च कन्फ्यूज हो रहा, बट बाय द वे वैस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये तुसीं याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत इंपॉर्टेंट होएगा, ठीक है। इनवर्स प्रोसैस तुहानूं पूछा गया, टू डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट इट। चलिए अगला क्वेश्चन है 154th क्वेश्चन ते तुहानूं पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट। फूड ग्रेन बारे पूछा जा रहा है। देखो जिथों का लगभग मैं राजस्थान के क्षेत्रफल बहुत वड्डा, पर राजस्थान के विच बहुत सारा क्षेत्र मरुस्थली है, इस करके राजस्थान नूं आपां कंसीडर नहीं करांगे। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आएगा, पंजाब ये ऑप्शन आपां कट कर देंगे। नंबर दूजा पंजाब है, नंबर तीजा मध्य प्रदेश है, नंबर नैक्सट आपां वैस्ट बंगाल का आंसर टिक करांगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानकारी सानूं इहदे बारे होना लाजमी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए मैच्ड करेक्टली। करेक्टली किहदे बराबर मैच नहीं है। देखो एग्जाम की गल करिए ना तो देखो यार सानू एक चीज़ समझ लेनी चाहिए है, रबी क्रॉप के अंदर मस्टर्ड हुण सरों हुंदी है कि सरों दे नाल इस टाइम कुकुंबर होएगी ठंड च नहीं होएगी, तो ये तो कभी भी मैच नहीं है। अगर आप गल करांगे सरों नाल बारले बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जे जायद की गल करिए तो मूंग अते वैजीटेबल बिल्कुल सही है, क्योंकि जायद है जिहड़ी मार्च तो जून के विचाल दी हुंदी है फसल। जे आप गल करिए खरीफ दे विच कॉटन बिल्कुल सही, तो यदा मतलब सही मैच है ना जिहड़ा ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਕਹੋਗੇ ਬਟ ਲਾਈਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਸਪਾਈਸਿਸ ਕੋਲਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਵੀਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਖਰੋਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪॉन्सिबल ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਰੇਮੈਂਟ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो आंसर होएगा ना, ਇਹਦਾ आंसर होगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इज सेंसिबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन इन इंडिया, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ यानी 1964 ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। और खास तौर ਤੇ याद रखना है कि गारंटी मिनिमम प्राइस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है भी वो भी इसे द्वारा जारी किया गया सीगा, ठीक है। तो ਇਹਦਾ सही आंसर होएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਅਪਰੂਵਸ ਦਾ ਫੇਅਰ ਐਂਡ रेमोनरेटिव प्राइस यानी FRP फॉर शुगर कैन, गन्ने वास्ते गल है। तो दसना चाहांगा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ਇਹਦਾ आंसर सही होएगा। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬਾਰਡ ਆਫਿਸਰ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ FCI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। हु रेगुलेट्स द मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो आंसर होएगा ऑप्शन नंबर होएगा बी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, ठीक है, अनैक्टेड बाय द स्टेट्स द्वारा हुंदा है। प्रेजेंटली मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की गल करिए तो रेगूलेट करदियां अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिन्हों APMC कहने हैं। ये एक्ट है ना अनैक्टेड बाय द किहदे द्वारा किया गया सीगा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया गया सीगा, ठीक है। तो ये चीज़ां तुसीं याद रखनियां है। और खास तौर पर अगर आप गल करिए तो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस इन रीजन सच, जिमें कि आप सीरीयल की गल करिए या आप पल्सिज की गल कर लीए या एडिबल ऑयल सीड की गल कर लीए, चिकन है, गोट है, सब इसे दे पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पर गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए करैक्ट। इन्हां चों स्टेटमेंट किहड़ा सही नहीं है। जे गल करिए आप भारत सैकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रूट इन वर्ल्ड है, बिल्कुल ये तो गल सही है, बट इन्होंने गलत वाला पूछा है। तो भारत इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर वैजिटेबल इन द वर्ल्ड, क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ਇਹਦਾ गलत है। सो दैट दोस्तों अज की सीरीज एक खूबसूरत क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे, तुसीं बीइंग ए टेस्ट तक तो लेने हैं। तुहाडे किन्ने क्वेश्चन सही ने प्लीज़ कमेंट करके जरूर दस्सिओ। और गिल्ज मिंटोर चैनल और पंजाब कैरियर अड्डा पंजाब का बेस्ट ई लर्निंग चैनल है, जो तुहानूं हमेशा मोटिवेट करता है सरकारी जॉब के संबंध में सब तो पहले ट्रू न्यूज़ लैके आउंदा है और तुहानूं हमेशा फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री PDF फ्री बुक शेयर कीतियां जांदियां। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लई तुसीं gilsmentortest.com की इस वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो, जिथे तुहानूं ढेरों सारे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों तुसीं अपना बेशकीमती समय दिता, इस करके मैं तुहाडा शुक्रिया करांगा और मैनूं उम्मीद है तुसीं जरूर अगे लाइक और शेयर करोगे। मिलांगे नैक्सट सैशन दे विच, तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।